May, June 2025, 5-2. Now, first question. How many questions are there? Question 1, and then what? Question 2. Question 2 is only of 10 marks, so question 1 is of 20 marks, right? So, in question 1, activated carbon is a form of carbon with the ability to adsorb solute from solution. Like if there is a solution, and there is this carbon have the ability to adsorb solute from the solution over its surface, right? The absorption of ethane dioic acid molecule from aqueous ethane dioate onto the surface of activated carbon is studied in a series of experiments. Like from that solution, which is a solution of what? Ethane dioic acid. Look, this is ethane dioic acid. It is present in water, where it is making hydrogen bond with water. It is dissolved. So the ethane dioic from the water, it is absorbed over the surface of the activated carbon. Now, before beginning the experiment, 500 centimeter cube of this much aqueous solution X is made. Okay, so they made this solution, right? The activated carbon is placed in an oven at 120 for 3 hours. Okay. Okay. To dry it? To make it dehydrated? This we will check. Are they asking this question? But okay, पहले इसको पढ़ते हैं ना, फिर उसके बाद देखते हैं. पर इन्होंने ये बोला है कि before starting experiment, the activated carbon is placed in an oven at 120 for 3 hours. Okay. Now, the procedure involves this. Prepare the solution. Okay. Transfer 50 centimeter cube. Like the made one is of 100, but transferred is 50 into a conical flask. 0.5 gram activated carbon to the conical flask and start a stopwatch. Okay. Shake the flask and immediately remove 5 centimeter cube sample from the flask. Determine the mass of the non-adsorbed COOH in the sample using chromatography. Wait, what is happening? This is your solution, 50 centimeter cube. This is the 0.5 gram Coke. And it was placed, and start the stopwatch. Shake the flask and remove 5 centimeter cube sample. And determine the mass of the non-adsorbed. So, when you mix it, shake it, during that time, some of the ethane dioic adsorbed, and some is not adsorbed. The one that is not adsorbed in the sample, it was determined using chromatography. Wow. Repeat step 4 at suitable time interval until there is no further change in the mass of the non-adsorbed in this sample. Solid ethane dioic acid has this formula.
calculate the mass of this to prepare 500. What you are supposed to do? 500 into 0.193 over 1000. You will get moles. What are the moles? Safwan? 1 second. Okay, so 500 into 0.139 divided by 1000. 0.0695. 0.0695 moles is equal to mass over MR, and the MR is 2 times 45 plus 2 times 18. Can you find? That would be 126. 126.00. Now, are you sure it's 126? Let me see again. 90 plus 90 plus Is it 18 times? times 2, 90 plus 36 times 126. Yes, ma'am, it's 126. Okay. The mass of this calculator is placed in a 100 centimeter cube beaker. Describe the steps taken to prepare 500 of 0.139 mole per cube of the solution 3 minutes. So what you are supposed to do? It is already placed. So you are not supposed to say that place this much. Like, look, they are saying that it is already placed. So you're not supposed to say this. You will just write that add some distilled water to this beaker to dissolve COOH twice dot 2H2O. Stir well. Now transfer this solution in a 500 centimeter cube volumetric flask followed by rinsing. Transfer this rinse water or wash water into flask. Now make the solution up to 500 centimeter cube mark. Put the stopper and invert the flask to mix the जी मैम हमने शुरू में भी वाटर ऐड किया है तो हम बाद में ही 500 सेम क्यूब तब उसको कर लेते तो पहले से थोड़े पानी में बनाया है ना, फिर उसको आपने इसमें ट्रांसफर कर दिया। 500 तक बनाना है। हाँ मैम पहले वो लाइक
पहले भी तो लिक्विड ही था ना, तो पहले उसमें पानी डालने की क्या जरूरत थी, हम बाद में ही उसको 500 तक कर लेते। क्यों सॉलिड नहीं था शुरू में? मैम उसके फॉर्मूला में तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स वो भी हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पार्ट ऑफ सॉलिड है बेटा, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके अंदर, समझ आ रही है? ये सॉलिड है या पहले डिसॉल्व कर रही है, क्लियर ओके, मुबशरा? यस मैम। Put the stopper, invert the flask to mix solution thoroughly. पता नहीं thoroughly का स्पेलिंग सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। OROU गलत लिखा है, THOROU होता है। ठीक, यहां तक समझ आई? हेलो, अब आ यस जाए। मैम। This is corrosive. Other than wearing eye protection and lab coat, state one safety precaution that should be taken when using this. It's corrosive. Gloves. Gloves. Now, you're not supposed to say just gloves. Chemically resistant Oh, gloves, right? mhm. Why the activated carbon is placed in an hour before use? To remove any moisture from them. No. No. ये इन्होंने प्रॉपर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है। Oh. आप क्या करना चाहते हो? उसमें एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं। आपके पास सोल्यूशन में क्या क्या सॉल्यूट क्या था आपका? ये था। जी। मैम और उसका रिएक्ट सॉल्वेंट क्या था आपका? वाटर था। जी। ये आपका सॉल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है, और ये आपका कोक है। आप चाहते हो कि ये उसके ऊपर एब्जॉर्ब करे, एग्री? Yes. आप चाहते हो कि ये एब्जॉर्ब, तो अगर ये एब्जॉर्ब हो सकता है तो ये भी तो एब्जॉर्ब हो सकता है, एम आई राइट? हाँ, look, if this can absorb, this can also absorb. So what you will do to stop the absorption of this? इसको आप गर्म कर लो ना। जब आप 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो 120 पे पानी इवेपोरेट करता है, हाँ? एट दिस वाटर क्या करता है? इवेपोरेट। तो इतने हाई टेम्परेचर पे पानी चिपकेगा इसके साथ या पानी इवेपोरेट कर जाएगा? इवेपोरेट यानी at least at 120 water is not going to stick it. Yes, it can. So why activated carbon is placed in an hour before use? So that H2O don't get absorbed, only COOH is absorbed. कुछ समझ आई या नहीं आई? हेलो, जी मैम। यदि आप लोगों ने पता है कभी भी कुछ भी हो, आप यू डायग्राम बनाया करें कि हो क्या रहा है। लाइक अगर आपको यहाँ पर थोड़ा मसला आ रहा है ना, तो एक बात बता दो, जो आपका 20 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आप जहां पर ग्रेड बाउंड्रीज ए और स्टार में फर्क आता है ना, बी, ये 3 बाउंड्रीज इससे इफेक्ट होती है। समझ आ रही मेरी बात की? लाइक लुक, मैं मानती हूँ कि कभी कभार आपको लगता है कि ये बस क्वेश्चन यूं चल रहा है, बट एक चीज और भी है जिसको ये यहाँ समझ नहीं आती कि बेसिक हो क्या रहा है। लाइक
मैंने मास कैलकुलेट किया, मैंने सोल्यूशन बनाया, ठीक है। ग्लाउज में हमारे बच्चे केमिकल रेजिस्टेंट नहीं लिखते, सो दे लूज मार्क फॉर दिस, ठीक है, विच आई डोंट लाइक एट ऑल, बट यस कैम्ब्रिज नहीं देता, ठीक है। तो अभी वालों में नहीं दिए थे, मुझे याद है, कुछ बच्चों ने केमिकल रेजिस्टेंट नहीं लिखा था, उनको मार्क्स नहीं दिए थे, ठीक है। सो जैसे आप लोगों को graphite has delocalized electron पे मार्क्स नहीं मिले थे, graphite have delocalized electrons that are moving freely in the layers, उनको मार्क्स मिले थे। अच्छा, in step 1 solution X is diluted to this much concentration, calculate the volume of X. Wait. Solution X is diluted to, okay, solution X is diluted to this volume of X. What is X? X is 0.193 mole per dm cube, right? 0.139, not 193, 0.139. What is the volume of X? Volume of X having this much concentration to make how much? To make 100 into 0.0056. So how much volume is needed? समझ आई? How to do? जी मैम। कितना वॉल्यूम बेटा? मैम ये वॉल्यूम हो जाएगा 0.556। Are you sure? uh, गड़बड़ और नहीं, कर 0.556 divided by, I'll do it. 0.556 divided by 0.139. It's 4 exactly. 4. Exactly Ex- 4. Are you sure? exactly full 4. मैम कुछ गड़बड़ है लगता है। मैम जी जी। मैम 100 तो सेंटीमीटर क्यूब में है और वो दूसरा तो डीएम क्यूब में है। तो मेरा फॉर्मूला ये होता है ना, C1V1 is equal to C2V2। आप कितना बनाना चाहते हो? 0.5566 और 100, और आप कितना वॉल्यूम ले किसका? 0.139 का। तो अगर इधर आप डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो इधर भी डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं होती। C1V1 is equal to C2V2। बट ये 4 करेक्ट है? आर यू श्योर इट्स 4? मैम exactly 4 आ रहा है। मैं चेक कर लूं इधर, पता चले कुछ। या 4 है, चल 4 है। 4 most appropriate piece of equipment to transfer 50 centimeter cube of, how can you transfer 50 centimeter cube? हाँ, measuring cylinder। नहीं, ये आपके पास पानी है जो आप मेजरिंग सिलेंडर से ट्रांसफर करोगे, ओह अच्छा। ये तो सोल्यूशन है। हाँ, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए आप पिपेट इस्तेमाल कर सकते हो या ब्यूरेट, ठीक। ओके। हाँ, बोथ आर इक्वली मोस्ट अप्रोप्रिएट। ब्यूरेट भी हो सकता है, सीधा सीधा ब्यूरेट भर दो, और पिपेट, बोथ आर इक्वली करेक्ट। So just reason why conical flask is shaken in step 4. Step 4 में क्या किया था? Shake the flask and immediately remove flask। क्यों किया था? कोक डाला, शेक किया, क्या So जवाब? it mixes well। So that all the COOH can be absorbed to give या maximum. फिर the carbon doesn't settle at the bottom।
क्या जवाब दो इसका? So that coke come in contact of more COOH, right? And more fast. Reaction and resorption. मैम इतना टेक्निकल जाने की जरूरत है बिकॉज मिक्सेस वेल भी तो यही होता कि coke comes in concentration of more COH2. To ensure a uniformly mixed sample. अच्छा okay. Their answer is much better. हमसे बेहतर जा रही है लोग. हमारा आंसर इतना अच्छा नहीं है. पता है ये लोग क्या कह रहे हैं? ठीक है, देखिए इधर मैं आपसे कह रही हूँ ब्यूरेट एंड पिपर इक्वली करेक्ट, बट इधर इनका आंसर हमसे बेहतर है. पता है क्यों? बिकॉज आफ्टर मिक्सिंग दे आर टेकिंग अ सैंपल. अगर तुम मिक्स नहीं करोगे तो तुम्हारा सैंपल यूनिफॉर्म नहीं होगा. देखिए आपने डाला और आप सैंपल ले रहे हो, क्या पता आप सैंपल इस जगह से ले लो, कि आप इस जगह से ले लो, लेकिन अगर आप मिक्स करोगे तो आपका जो सैंपल होगा वो यूनिफॉर्म सोल्यूशन होगा ना. समझ आई? हम यहाँ पे फोकस कर रहे थे, हम अगले स्टेप पे कि मिक्सिंग के बाद वो कर क्या रहे हैं. दे आर टेकिंग द सैंपल टू टेक अ मोर सो दैट द सैंपल टेकन इज अ यूनिफॉर्म सैंपल. समझ आई? Yes. तो यहाँ पर मैं अपने आप को मार्क नहीं दे रही, आप भी नहीं दोगे. ठीक है, तो so that the 5 centimeter cube sample is of uniform solution. Next, the result of the experiments. Zero time पे mass of non-adsorb. कम adsorb है, 5 मिनट के बाद एड्सॉर्ब हो चुका है, कम रह चुका है, और कम रह चुका है, और कम रह चुका है, एड्सॉर्ब हो जा रहा है. यानी सोल्यूशन में से एड्सॉर्ब कम बच रहा है. तो mass of this adsorb, शुरू टाइम में एड्सॉर्ब नहीं था, तो बस माइनस करते जाएगा. माइनस करते जाओगे, राइट? यानी ये आपके पास mass of नॉन एड्सॉर्ब. तो mass of एड्सॉर्ब कितना था? कितना हो गया यहाँ पर? 2.5 minus 1.9, 2.5 minus 1.52, 2.5 minus 1.43. सही तो कर रही हो ना? This minus 0.88, मजीद एड्सॉर्ब नहीं हो रहा. बताओ बेटा कितना आंसर आ रहा है? पहला वाला, किसका? पहला. पहले का देखा. 0.6. 0.6. Next, It's 5 to 0. कितना 1 second, ma'am. करना होगा? 0.98. 0.98 8. नहीं हो सकता मुझे लग रहा है, या है? ओ सॉरी, पिछले का मुझे लगता है गलत होगा. मैम इंक्रीज ही होगा ना, क्योंकि कम माइनस हो रहा है. हाँ, तो कितना आ रहा है? पहला वाला कितना है? मैम पहले वाला था 0.6. अगला कितना है? 0.98. 0.98. अगला कितना है? 1.07. नहीं, अगला वाला नंबर क्या है? 7. कितना? 1.07 आ रहा है मैम. नेक्स्ट, 1.51.
हाँ 1.62. 1.62 एड्सॉर्ब ज्यादा हुआ चला जा रहा है। ये लेफ्ट ओवर था ना। 1.69 और अगला 1.7. हाँ 1.7 बताओ, इस पे मुझे 1 मार्क मिलेगा जो मैंने किया है? यस। नहीं मिलेगा। मैं ये 1 मैम मार्क लूज ये कर। आपके डेसिमल ओ मैम आपने 0.60 नहीं लिखा। एग्जैक्टली। समझ आई कि अगर ओके वो 2 डेसिमल प्लेस तक इशारा दे रहे हैं इवन तो यहाँ पर, तो आपने करना है, वरना ये मार्क आप काम करोगे आपको मार्क नहीं मिलने वाले। हम्म अच्छा, ये मुझे बताओ, ये मैथ्स एड्सॉर्ब आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, मोर एंड मोर इज एड्सॉर्ब, मोर एंड मोर इज एड्सॉर्ब, और इसके बाद फर्दर एड्सॉर्ब नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फर्दर अगर एड्सॉर्ब नहीं हो रहा तो था ही इतना, या सरफेस ये एरिया कैपेसिटी थी। खत्म हो गई। ये भी तो हो सकता है। अच्छा हाँ ओके, क्योंकि अभी नॉन एब्जॉर्ब्ड है थोड़ा सा 0.8 मास ऑफ नॉन एब्जॉर्ब एड्सॉर्ब, हाँ नॉन यानी वो एड्सॉर्ब इतना है, एड्सॉर्ब इतना है, तो इसका मतलब है कि वो जो कार्बन है उसका सरफेस एरिया ही खत्म हो गया। समझ आई? हाँ यस क्योंकि नॉन एड्सॉर्ब है। यस, so mass of non-adsorbed total is this much, adsorbed maximum इतना हो चुका है। okay, table 1.1, plot a graph on the grid to show the relationship between this, draw a curved line of best fit। okay, मैम क्या हीट करने से भी नहीं होगा ज्यादा एब्जॉर्ब? नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि उसकी सरफेस एरिया पे कैपेसिटी खत्म हो गई, आपका कोल ही खत्म हो गया, जितना वो एब्जॉर्ब कर सकता था वो कर लिया। ठीक है, नहीं 0 0 टाइम पे है 0, और 0 5 के बाद 0.6 है। 5 कितना आ रहा है? My God, 5 कितना आ रहा है? 5 आधे का भी याद है यस, 5 पे कितना आ रहा है? 0.6 और 15 पे कितना आ रहा है? 0.98। 0.9 इसका हाफ आएगा। 1 से बिल्कुल निचला लाइन 0.929496, ये वाला ना जी 0.98। अच्छा, और अगले पे 30 पे आ रहा है 1.07, 30 पे आ रहा है 1.07, 0 1.07 कितना होगा? ये ये बस इनके नीचे होगा दरमियान में एक 1.1 होगा तो इन बिटवीन मैम। ये जगह नहीं मैम ये होगा जो तीसरी लाइन है चौथी लाइन है उसके दरमियान में 1.02 1.06 ये वाला। जी ठीक है, अच्छा 45 पे कितना आ रहा है? 1.45 पे 45 पे है 1.51 वेट, मैं इसको नीचे देखो, ये मैं कहाँ ले जाऊँ? 45 पे आ रहा है 1.51, हम्म 45 is how much? 50, 1.5, 1 आ रहा है ना, जी 1.5 हो गया। ठीक है, तो 5 से 1.51 हाफ हाफ अ स्क्वायर दिस है ना, जी जी और 1.62 आ रहा है 60 पे, 60 पे 1.62 आ रहा है, राइट। जी और इन 90 पे है 1.69 90 पे कितना आ रहा है? 1.69 1.69,
ये हो जाएगा। और फिर है 120 पे 1.7। और फिर अगला भी 1.7 है। तो ये मेरा कर्व कैसे बने? इसमें तो एक एनॉमलस पॉइंट क्लियर कट आ रहा है। 1.07 यही आता है, मुझे लगता है, शायद ना गलत लगा। नहीं, उन्होंने बेस्ट फिट तो नहीं कहा। फिर अगर बेस्ट फिट होगा तो फिर तो कर नहीं सकते उसके नीचे से। अच्छा, अगर मैं इसको इतना कर दूं और उसके बाद एक और लाइन लगाऊं, इस लाइक दिस। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने पता है क्या बोला है, पढ़ो। कर्व ड्रॉ कर्व लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बेस्ट समझ फिट आई? ठीक है ना? अच्छा, क्लियर? हेलो? जी मैम। यस जी मैम। मैम। अच्छा, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इतने भी तो हम नालायक नहीं मैम है। जो वाई एक्सिस पे होता है, हाँ एक्स एक्सिस। इंडिपेंडेंट टाइम। So just one variable that need to be controlled that is not stated in the experimental procedure. टेम्परेचर नहीं। क्या चीज था? हम चाहते हैं कि एब्जॉर्ब हो। हमने कंसंट्रेशन भी किया है, हमने वॉल्यूम भी लिखा है अपना। मैस सेम है। mass of coke, एक मिनट। हमने वॉल्यूम लिया, हमने कंसंट्रेशन कंट्रोल की, हमने 0.5 ग्राम लिया। हमने स्टॉप द टाइमर। हमने चीज है, आई थिंक टेम्परेचर मेंशन नहीं है ना? हाँ टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर इफेक्ट कैसे करेगा? अगर टेम्परेचर वेरी करता है जी। अगर थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट तो करेगा। डोंट यू थिंक? यप। है ना? जी मैं जी। उसका हो जाएगा क्या चीज? हाँ ना, उस एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। ओ हाँ, ओके। क्योंकि मैम वो मॉलिक्यूल्स फास्टर हिले होंगे तो जल्दी एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब होगा नहीं, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगी। अगर ज्यादा टेम्परेचर होगी तो एब्जॉर्ब कम होगा। नहीं, जल्दी नहीं होगा। नो, मैम वो वाइब्रेट ज्यादा करेंगे ना। वाइब्रेट ज्यादा करेंगे, एब्जॉर्ब कम होगा। ओ, एब्जॉर्ब कम होगा। तो क्या हम उन्होंने सही भी रीजन बोल रहे हैं? हम सही भी बोल रहे हैं, ये भी रीजन उन्होंने पूछी है रीजन। रीजन तो वो तो suggest one variable that needs to be controlled. बाद में देखेंगे, अभी हमने नहीं देखना कि हम क्या गलत, फिर हमें अगले पार्ट के आंसर नजर आ जाते हैं। अच्छा, हम टेम्परेचर लिख लेते हैं, छोड़ो अब इतना ना सोचो इस पे। Circle one point on your graph that you consider to be most anomalous. Explain the error in timing this. अच्छा, तो most anomalous is this one, सर्कल कर लिया। आप बताओ इसमें अब गलती क्या हुई है? ये शायद, हाँ इतने टाइम पे एब्जॉर्प्शन जो कम हो रही है, एब्जॉर्प्शन क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। हमने क्या गलती की है? ये एक्चुअली कितने टाइम पे था? ओ 20 पे था। ये इतना 20 पे था। हमने एब्जॉर्प्शन पहले किया टाइम से। यस, हाँ एब्जॉर्प्शन पहले रिकॉर्ड किया फिर टाइम रिकॉर्ड किया, हाँ, तो सो उसमें डिले आ गया और वो एग्जैक्ट आगे गलत टाइम पे, यानी आपको एग्जैक्ट टाइम पे रिकॉर्ड करना था, तो एग्जैक्ट टाइम पे इतने टाइम पे एब्जॉर्प्शन कितनी होनी थी? ज्यादा होनी थी ना। एब्जॉर्प्शन कम हो चुकी है, सो इट्स मेजर्ड बिफोर द रिकॉर्डेड टाइम। हाँ ठीक है, मेजरमेंट इज डन। मैम इस पॉइंट की समझ नहीं आई। आप मुझे बताएं, ये एब्जॉर्प्शन जो हमने रिकॉर्ड की है 20 मिनट में, इट्स एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाँ,
इसका टाइम क्या होना चाहिए? इसका टाइम ये टाइम होना चाहिए या कम टाइम होना चाहिए? सिर्फ इतना जवाब दें। ये जो वैल्यू है एड्सॉर्प्शन की, इसका टाइम क्या होना चाहिए? हाँ, कम होना चाहिए। इसका मतलब है the the adsorption is measured before the recorded time. अगर इस टाइम पे करते ना तो वैल्यू बड़ी आती, अगर एग्जैक्ट इसी टाइम पे करते ना तो वैल्यू बड़ी आती। ये वैल्यू कम आ रही है, ये शो कर रहा है कि the adsorption is measured before the recorded time, यानी आपने करना 30वें मिनट था और आपने 25वें मिनट पे किया तो वैल्यू तो कम आएगी। लिखा तुमने 30 पे है और किया तुमने 25 पे है। डू यू गेट? हाँ, यस मैम। measurement is done before recorded time। अब आ जाओ। आई डोंट वांट गंदे गंदे क्वेश्चन मैं नहीं करती। कितने मार्क्स मैंने पेपर में कितने छोड़ के आने थे? 1 2, तो ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 3 4 5, ये थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं। 5 नहीं छोड़ के आ सकते। चलो आ जाओ। The experiment is repeated using different concentration। सबसे पहले फिर इनके आंसर देख लेते हैं, फिर उनको देखते हैं कि हमने ये जो 2 सोचा ये गलत सोचा या सही है। पेज क्या ठीक है? क्या चीज है? टेम्परेचर। Temperature. An anomalous point circled at 30, the actual time was less than the recorded time। समझ आई? हाँ जी जी। ठीक है, the actual time was less than the recorded time। ठीक है, next the experiment using a different is repeated using different concentration of this। एक मिनट में फिर से पढ़ो, मैं कुछ और सोच रही थी। The experiment is repeated using different concentration prepared in step 1। Okay, the results are shown। इतने गंदे गंदे इन्होंने लफ्ज लिखे हैं। ये क्या लिखा है? मिलीग्राम्स, MI मिलीग्राम्स, MI -ME। ये मुझे लगता है mass absorbed और mass remained है। लिखा है लिखा है लिखा है। Initial mass in 5 centimeter cube, हम्म the mass of the non-adsorbed in 5 ओके। centimeter cube, the mass of adsorbed per gram। अच्छा, ये पर ग्राम पे बात चली गई। अब जरा एक काम करो, चेक करो, ये पर मिलीग्राम में था और ये पर ग्राम में आ रहा है। नो 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 नो। नहीं मैम, वो ग्राम वैसे मिलीग्राम उसका यूनिट है, ये मिलीग्राम पर ग्राम वो है। कार्बन का है, वो कार्बन का है, राइट। अच्छा, इधर देखिए, ये शुरू में आपके पास इतना था, ये डायोइक एसिड, फिर उसमें से इतना मास एड्सॉर्ब नहीं हुआ तो इतना एड्सॉर्ब हुआ है किसके ऊपर? चार, वो जो आपका वो था, किसके ऊपर था? कोक था ना एक। तो अगर इतना एड्सॉर्ब हुआ है इतना मिलीग्राम, तो पर ग्राम पर ग्राम पर ग्राम इतना एड्सॉर्ब है। ठीक है, अच्छा ये डिफरेंट सोल्यूशन है। शुरू में इतना है तो इतना एड्सॉर्ब हुआ, फिर इतना है तो इतना एड्सॉर्ब हुआ। ये डिफरेंट अमाउंट में से डिफरेंट एड्सॉर्प्शन जा रही है। ओके, और ये आपके पास क्या आ रहा है? ये आपके पास क्या है? व्हाट इज QE? QE is the mass of COOH। पर ग्राम पर ग्राम। ओके ओके ओके। ओके। तो ये इन्होंने क्या किया है? ME, और ये क्या चीज है? ME, mass of non adsorbed। over mass of absorbed per gram of activated carbon। हाँ देखिए, आप इस चीज को जरा क्लियर करो, ये क्या चीज है? ME is what? mass mass of non-absorbed। या नॉन एब्सॉर्ब, और नीचे वाला क्या है? mass of absorbed per gram। एब्सॉर्ब पर ग्राम है। ओके, ऑफ द कोल है।
Right, okay. A plot of this against this gives the of non-absorbed against it line of best fit. Determine the gradient of the line of the best fit. Change the coordinate of both. किधर है ग्राफ ये? अब ये काम आप लोगों ने मुझे करके देना होगा, ये इसमें मैं काफी बुरी हूँ. कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2. बताओ कौन से पॉइंट्स उठाऊं? मैम ये क्या उठा कह लेते हैं. 2 कोऑर्डिनेट्स उठाने हैं. ग्रेडियंट बनाना है? यस. ओके मैम, ये जो 0 पे आ रहा है ये एग्जैक्ट नहीं? अच्छा, नहीं, थोड़ा सा फर्क है. इसको उठा लूं. मैम ये 1 इसको सेकेंड, ये 2.4 पे जो आ रही है पॉइंट, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है. ME वाले एक्स एक्सिस पे 2.4. 2.2. 2.2 ये वाला, एक्चुअली, 2.4 नहीं. ये वाला, जी मैम. कोई यस, सी भी दो उठा निकला लो. भी. अच्छा, कोई सी भी दो उठा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप 0 भी उठा सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे, बस मुझे लिखना नहीं आता. लिखवाओ मुझे. सही है. हाउ यू विल राइट द कोऑर्डिनेट फॉर दिस? पहले एक्स वाला, यानी लिखवाओ. मुझे नहीं पता, लिखवाओ मुझे, मैं गलत 2 हूँ. पॉइंट 2.8, मुझे श्योर 2.8. क्योंकि ये 4 करके चल रहा है ना, क्योंकि 3 है तो 4, नहीं 2 करके, सॉरी 2.4 2.4 और 4 और और कॉमा 0.04. 0.04. और अगला क्या आ जाएगा? ये अब मुझे आ रहा है 8.0. अब मुझे आ गया 8.0. अब मैं कर रही हूँ, अगर मैं गलत करूँ तो मुझे रोको. ओके मैम. कितना आ रहा है? और ये कौन करेगा? पॉइंट व्हाट? पॉइंट 1 वन. 5 Are you sure 1 1 1? Yes, 0.11. 1 2 फिर 1 3. Yes, you're right. ठीक है, तो इधर आ जाओ. तो पॉइंट मैं इसको जरा कॉपी कर लूँ इसे. 2.4 और 0.04. ठीक है, 8.0 और 0.11. एक चीज कंफर्म कर लूँ ऊपर. अब पता है मैं मार्क्स लूज कर रही हूँ. बताओ, कोई बता सकता है मैं मार्क्स कहाँ लूज कर रही हूँ? अगेन आई एम लूजिंग मार्क्स. ब्रैकेट्स नहीं डाले? वो 2 0, 2 0 कुछ ओ नहीं. अच्छा, 0.800 हो गया. हाँ, ये इन डेटा को देख के आपने ऐसी बातें करनी है. हाँ सिर्फ हाँ. इनको देख के नहीं चलना, आपने पूरा डेटा माइंड में रख के चलाना है. राइट. और इसका तो माशाल्लाह से ये वाला कितने डेसिमल प्लेस तक है? यहाँ तो कुछ वो ज्यादा 2 ही है. है. ये तो हमारा वाला कैसे क्यों आ रहा है? हमारे वाली क्यों इतनी एग्जैक्ट एग्जैक्ट है? अ, हाँ, सोचने की बात है. वो हमने चूज ऐसे की है. हमें ये लोग इजाजत देंगे? हम जीरो ऐड कर देते हैं बस. बस जीरोस ऐड कर देते हैं. कितने ऐड करने हैं? 4 तक जाना है? जी, तो HR और वो भी 4. कर जाओ. ठीक है, लेकिन मुझे लगता है करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, वैसे मुझे, मैं कुछ ज्यादा वो इनके प्रेशर में आ रही हूँ. ओके, चलो. मैम बताओ. कोई से भी पॉइंट्स यूज कर सकते हैं ना, इतना कोई वो तो कोई फर्क से भी, नहीं. नो 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 नो, कोई से भी आप बेशक ये और ये कर जाओ. बट आपने इतने छोटे छोटे नहीं करने. नो, इतनी की इजाजत नहीं है. नो. पता मैम है और क्यों? ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज नो, ठीक है. आप बना लो, और लेकिन अगर आपने यूं लिखा है तो अंडरस्टूड है ना कि आप ये कर रहे हैं. समझ आई? नहीं मैम, वो ट्रायंगल के मार्क्स होते थे ना वो P4 में, चलो P3 में बना सॉरी. लो. चलो, अब सही है. 3 में ठीक, बना लिया. ना होगा बांस, ना बजेगी बांस. ठीक है, समझ आई सही है आपको? मैम. हाँ. अच्छा, आप मुझे बताओ ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? ग्रेडियंट अब निकाले मुझे. y, पहले y वाले ये माइनस कर. हमें ये एक्स था और ये वाई था, अगर मैं गलत ना हो. जी. हाँ, तो और कर तो दो. सेकंड 0.11 माइनस 0.04 और बस 8 माइनस 2.4.
अच्छा, ऊपर वाले का यूनिट क्या था? ऊपर वाले का यूनिट ऊपर है, वाले का यूनिट मिलीग्राम्स पर ग्राम है ये ग्राम था, ठीक है, और ये पर नीचे का ग्राम, मिलीग्राम नो पर ग्राम या ग्राम है? ग्राम है, ग्राम, पर इट्स जस्ट ग्राम। मिलीग्राम पर ग्राम और नीचे वाला क्या है? एम ई क्या है? मिलीग्राम। तो यानी मिलीग्राम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पर ग्राम लगा जाएगा। हम पास गए, ऊपर ग्राम है, नीचे मिलीग्राम है। नहीं मैम, ऊपर मिलीग्राम्स पर ग्राम है। नो 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 नो, वो डिसाइड है, अच्छा, जस्ट डिसाइड हुआ है, ठीक है। कर तो चुके हैं। इसमें कैंसिल आउट कर देंगे 9 यूनिट। ऊपर ग्राम और नीचे मिलीग्राम, तो इसका मतलब है कि हम एक्सपोनेंट मतलब 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैम मिलीग्राम का कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, कैसे करूं? कैंसिल कर देंगे। हाँ, तो इसका मतलब है कि इस पूरे को कन्वर्ट करना है ना? हाँ, हाउ कैन यू कन्वर्ट द मिलीग्राम इनटू ग्राम इनटू 10 पावर माइनस 6? हम्म मुझे नहीं आता। मिलीग्राम इंटू को 10 होगा, इनटू 10 पावर व्हाट? -3. आर यू श्योर? Milli is -3, I think. यस यस, बस फिर ये कैंसिल मिली हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? जल्दी से आंसर बताओ। आंसर आ जाएगा, 1 सेकेंड, 0.11 माइनस 0.4 है 0.04। अच्छा, 0.07, 12.5। दैट्स इट। हाँ, हमें यूनिट्स, हमें ये नहीं कहेंगे कि ग्राम्स पर मिलीग्राम लिखते हैं, क्योंकि उनका मीनिंग है यूनिट्स का। मैम इसका यूनिट जी इतने ग्राम पे एब्जॉर्ब होगा ना, है ना? हम देखें, उन्होंने ऊपर भी एक यूनिट इस्तेमाल किया है, मिलीग्राम्स पर ग्राम, तो यहाँ भी तो कर ग्राम्स पर चुके, मिलीग्राम हो यस सकता यस यस यस, यू आर राइट। 3 हटाओ, है। तो फिर ये हटाओ 10 पावर हटाओ। 3 काट जाएगा, तो फिर ये हाँ, हो जाएगा हाँ, 0.07। exactly. तो कितना आ जाता है? नीचे क्या है, 8 माइनस 2.4, और ऊपर है 0.11 माइनस 0.04। 0.07 डिवाइडेड बाय 5.6, ये हो जाएगा 0.0125। 0.0125। जी ठीक। ठीक। उसके बाद ये क्या हो रहा है? द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट is the mass of this adsorbed per gram of activated carbon. The equation of the line of best fit is shown. Use the gradient to calculate the adsorption quotient. कैसे करना है? मैम इसको y इक्वल्स mx प्लस c के वो नहीं करेंगे इक्वेट? करेंगे, बिल्कुल करोगे। तो अगर मैं तो इसको करती हूँ, तो मुझे बताओ ये मेरा क्या आ रहा है? वेट अ मिनट, थोड़ा सा ये चीजों को मैं यूं करती हूँ जिनको, जो मेरी तरह है। ये आपका y हो गया, जी, हाँ, ये आपका और क्या हो गया? m हो गया। तो 1/1 क्या चीज? q इक्वल टू ग्रेडियंट। यस तो 1/q0 इज इक्वल टू 0.0125 मैथ्स। अच्छा ठीक है। हाँ, ये काम मुझे बड़ा फिट आता है, मुझे ये नहीं आता। वन अब देखो जरा, आपको मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी बताऊं। अब मैंने अपने दिमाग को कह दिया कि जीनत तुम्हें ये नहीं आता, तो पता है मैं कभी भी नहीं कर सकती। आप मुझे कहोगे ना ग्राफ से सीधा सीधा करो, मैं विद इन नो टाइम आपको रन एंड राइज बता दूंगी, राइज ओवर रन करके एग्जैक्ट आंसर दूंगी। बट ये चीजें जो है ना, ये मुझे मुश्किल में डालते हैं, पता नहीं क्यों। लाइक वेयर इज द इशू विद मी? ठीक है, बट मैं ये नहीं लिख सकती। अब देखो जरा, ये मैं तुम लोग को इस वजह से कहती हूँ कि अपने आप को मत बोला करो कि ये नहीं आता, आता है आपको सब आता है। ठीक है, तो ये राइज, ये रन, ये आपका ग्रेडियंट आ गया। और आपने बिल्कुल सही सोचा कि अगर इधर आ रहा है तो इधर भी आएगा। डन, फिनिश। उसके बाद ये आपका y था, ये आपका x था, तो 1/q आपका ग्रेडियंट था।
और ग्रेडियंट मैं निकाल चुकी हूँ, इक्वेट करो। वन ये आपके वन पास ओवर कितना 0.0125 एग्जैक्टली 1/0.0125 इज योर क्यू। ठीक, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ओह सॉरी, मैंने कैलकुलेट बता मैम, आ रहा है 80 कितना? 80 80 80। यस। ठीक, अब मैम आ ये जाओ। हमेशा ये थ्री क्या लिखा है सिग्निफिकेंट फिगर के वो बता? देने होते हैं आंसर। ये 80.0 पता डाला है, ना इस आपने? डेटा को देख के देना होता है। अच्छा इस डेटा को देख के मुझे लग रहा है मैं तो कम ही डाल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि एक और 0 बढ़ा दूं। हाँ अच्छा इतने ज्यादा लगे हुए हैं ना, मुझे लग रहा है कि हम्म एक और बढ़ा दूं तो काम चलेगा ही। इतने पर भी नहीं चलना। समझ आई? जी मैम। ठीक है ना? ये इनको देख के करना होता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, लेकिन ये लोग नीचे क्वोशंट इतना दे रहे हैं ना, लुक एट दिस, नीचे दे रहे हैं इतना, तो आई एम परफेक्ट। समझ आई? लुक, मैं पूरा जी मैम। ऊपर नीचे देख रही होती हूँ क्या हो रहा है। नीचे जो इन्होंने दिया है ये है। तो इन्होंने कहा कि the experiment is repeated and this quotient is calculated, it is this much. The total percentage error from the experimental procedure is 6.5%. The data quotient in the data booklet is this much. सही है। ये एग्जैक्ट ये है, और हमने जो किया है वो ये है। तो दोनों में ठीक कितने है का डिफरेंस आ रहा है? कैन यू फाइंड द डिफरेंस? चेक करो जरा। जी। हाँ, 86 minus 78.1 divided by डिवाइडेड बाय 86 into 100 करो। इज दिस रियली into 100. 6.5? 86 minus यूं नहीं करना 78.1 था, यूं नहीं करना था, इधर देखो। 78.1 minus 86 over और 86 into 78.1 100 कितना आ रहा माइनस है? डिवाइडेड बाय 86। ये मैम 0.99% आ रहा है, 9.1%। एक मिनट दोबारा करो। ये लोग कह रहे हैं कि कैलकुलेटेड इतना है, द परसेंटेज एरर इतना है, डेटा बुकलेट इतना है। तो ठीक है 78 कैलकुलेट किया है, होना 86 चाहिए। तो ठीक है 100 चेक करो आप, अब दोबारा करो जरा। 86 divided by 86 times into 100 100 negative 9.186। गड़बड़ कर रहे हो, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। नेगेटिव में मैम क्यों जा रहा है? नहीं ओ मैम 9 नेगेटिव में point जाएगा, यस नेगेटिव में जाएगा, यस 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 यस। 9 point क्या आ रहा है मैम? 86 बड़ा ये है ना? कम हो। जी मैम। ठीक है, मैं बस क्या कह रहे हैं 86 ये, minus इनकी बात 78.1 कर लेते हैं। कर लो जरा, करो तो प्लस मैम हो उसका जाएगा। साइन बदल जाएगा दोनों में तो सिर्फ। साइन ही चेंज होगा। तो उसमें कितना? 9.2 फिर भी बड़ा है 6.5 से, तो आई थिंक नहीं है उसके अंदर लिमिट्स में। पता नहीं, तो कुछ ये लोग कुछ और मैम फिर पूछ रहे यही हैं। लिखेंगे ना, इट्स कॉज्ड बाय अदर फैक्टर्स, फिर हम बताएंगे हाँ, फैक्टर्स के क्या है। टोटल परसेंटेज है इज 6.5, तो हमारा is not within the experimental errors। एक बिकॉज मिनट होल्ड ऑन। हमारा जो हमने जो कैलकुलेट किया वो कितना आया, सिर्फ इतना जवाब दो। 9.2। 9.2 9.2, जिसमें से इतना एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में गलती है, जी राइट? तो बाकी जी गलती किस वजह से है? जो हमारा प्रोसीजर था उसमें डेटा इतनी वाला गलती है। यूज द इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन वेयर द एरर इन द के लिए रिपीटेड पूछा है कि एक्सपेरिमेंट use the information to determine whether the error in the repeated experiment could be accounted for by the experimental error। और इज कॉज्ड बाय अदर फैक्टर। तो the other factors का जरूरी तो नहीं हम लिखें, हम सिर्फ ये लिख सकते हैं कि नहीं वो no it is not accounted for by the experimental errors। मेरा डेड हो रहा है, इसलिए मैं इसको जरा चार्जिंग पे लगाऊं। इनका एक मिनट आप इनकी बात को जरा समझे। एरर ज्यादा आ रहा है, जिसमें से एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की वजह से तो कंफर्म जी 6.5 है। क्वेश्चन ये बन रहा है, चार्जिंग मेरी खत्म हो रही है। आज पूरा
यस। अच्छा ये देखिए, एक मिनट। कह रहे हैं एक तो 20 मार्क्स का इतना लंबा क्वेश्चन है, बंदे को थका देता है, एंड तक पहुंचते पहुंचते बंदे की बस हो जाती है। अच्छा इधर देखिए, ये कह रहे हैं कि एरर तो है इतना, जिसमें से एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की वजह से इतना है। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन वेयर द एरर in the repeated experiment could be accounted for by experimental error or is caused by other factors. तो मैं तो कहूंगी other factors too. एक्सपेरिमेंटल सिर्फ आपके पास 6.5 है, तो 9.2 पे डिफरेंस क्यों जा रहा है? बिकॉज अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो। हाँ, लुक, टोटल एरर कितना आ रहा है? 9 टोटल एरर आ रहा है 9.2%, 9.2%. and 6.5% आपके पास एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर से आ रहा है। हाँ, तो फिर कितना परसेंटेज हो के अदर फैक्टर्स? 9.2 minus 6.5. कितना आ रहा है ना यार? 9.2 minus 6.5% is by other factors. मुझे लगता है यही जवाब है सिर्फ। या देखिए जरा, ये मैं आप लोगों के साथ ही कर रही थी, देखिए मैं सही बोल रही हूँ कि 9.2 था, which is more, so other factors contributed. वाओ, खुशी होती है, सोचा सही। ठीक है, टेम्परेचर टू सिग्निफिकेंट ग्राम पर मिली, और लोग आप वो कर नहीं सकते, एंड क्वेश्चन इज 1 by gradient. ओके डन स्टूडेंट्स। जी मैम. जी मैम. हम पहला क्वेश्चन सारा सही किया, हमने 1 मार्क लूज किया। विच वन? बताओ जरा मुझे। ये वाला यूनिफॉर्मिटी वाला, हमारा यूनिफॉर्मिटी वाला आंसर गलत जा रहा था। मैम वो फिर भी वही बात नहीं हो गई जो आपने लिखी थी नो नो कि नो 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 नो, ये बात नहीं है। ठीक है, अच्छा. असल में जो तुम उस सैंपल में से ले रहे हो ना, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। तुम्हें इसको मिक्स करने की देरी नहीं है। मसला क्या है? मसला ये हो रहा है कि जो सैंपलिंग आप कर रहे हो ना, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। समझ आ रही है? कॉन्टेक्ट ऑफ ओके मैम जो मैम. ठीक है, मार्क्स की में सिर्फ ब्यूरेट था, तो हमने तो पेपेट पे लिखा है, तो तो ब्यूरेट क्यों ज्यादा एक्यूरेट? वो असल में 50 आसानी से डाल दोगे। पिपेट एंड ब्यूरेट बोथ आर अप्रोप्रिएट। समझ आए? देखो, जहां जहां ये लोग पूरी बात नहीं कर रहे हो, मैं मान रही हूँ, जहां मैं गलत कर रही हूँ मुझे वो भी पता है। ठीक है, 50 तो आराम से पिपेट और ब्यूरेट दोनों से हो सकता है, लेकिन ब्यूरेट से आसानी से होगा। मैं तो कहती हूँ पिपेट से उससे भी आसानी से होगा। 2 दफा भर दोगे, ब्यूरेट भरोगे फिर जाके डालोगे, तो ज्यादा लंबा काम है। तो गो फॉर पिपेट ट्वाइस। समझ आई? जी मैम. बस इतना काफी है। ये मैं शेयर कर दूं ग्रुप में? कर दो मैम. लो,